وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کل ریاست بہار کا دورہ کریں گے۔ بہار کے دورے کے لیے وزیر اعلیٰ چاشمبے کی صبح حیدرآباد سے پٹنہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بہار میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے اعلان کے مطابق گلوان وادی میں شہید ہونے والے ہندوستانی فوجیوں کے پسماندگان کو مالی امداد فراہم کریں گے۔ شہید فوجیوں کے پسماندگان کے ساتھ وزیر اعلیٰ حالیہ عرصے میں شہر حیدرآباد میں پیش آئے حادثے میں 12 مہلوک افراد خاندان کو بھی مالی امداد فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریاست بہار کے اپنے ہم منصب نتیش کمار کے ہمراہ ان افراد میں چیکس تقسیم کریں گے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ ریاست بہار کے اپنے ہم منصب کی جانب سے ان کے اعزاز میں ترتیب دیے جانے والے ظہرانے میں بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر دونوں وزرائے اعلیٰ قومی سیاست کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سید عمر جلیل نے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس میں نتائج کا اعلان کیا۔ انٹر سیکنڈ ایئر کے سپلیمنٹری امتحانات میں مجموعی طور پر 48,816 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے۔ اس طرح کامیابی کا فیصد 47.74 ریکارڈ کیا گیا۔ امتحانات میں جملہ 1,02,236 طلبہ نے شرکت کی تھی۔ ووکیشنل میں 12,053 طلبہ نے امتحانات میں شرکت کی تھی، جن میں سے 7,843 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے۔ ان نتائج میں 53.59% لڑکیاں اور 44.43 لڑکے کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ نتائج میں ضلع ملگ پہلے مقام پر اور وقارآباد آخری مقام پر رہا۔ انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات 1 اگست سے شروع ہوئے تھے۔ اس امتحان میں تقریباً 1.13 لاکھ طلبہ نے شرکت کی تھی۔ The students can apply from 5th of September to 8th of September because we have the short time, and the second list for counseling for MCET will be there. So we are giving a few days time to apply such that we can give the results of re-verification as fast as possible. Moreover, the students who feel any depressions, any troubles, they can call to our clinical psychologist. Their number is given in our press release. They can talk to them also. Repeat again. 18005. The number for our clinical psychologist is 18005 999 18005 999. The results among the districts are, for the general students, the Mulgu has got 89%, Asifabad has got 81%, and the Nirmal has got 70% marks in the highest list. For the vocational, Asifabad has got 87% as the top, then Suryapet has got 80%, and the Mancherial has got 78% in the topper list. And the most asked question among you people is, the management wise, what would be the results? Among the government colleges, the pass percentage in general is 49.8%, government sector 57.95%, and for private it is only the 45.80%. In the vocational category, in the government junior college students got 68.82%, government sector students passed 66.28%, private students passed 62.79%. These are the overall results. Just our secretary sir will release the password for. This will be handed over to all of you. The printout will be handed over to all of you. وزیر افزائش مویشیات تھلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ گنیش فیسٹیول کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان انتظامات کے سلسلے میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے مٹی کی مورتیوں کے ذریعے ماحولیات کے تحفظ پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کی جانب سے 6 لاکھ مٹی کی مورتیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ فیسٹیول کے سلسلے میں پولیس کا مناسب بندوبست کیا گیا ہے۔ پولیس نے کشف کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگاتے ہوئے اسے چنچل گڑا جیل میں محروس کر دیا۔ اس پر اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اشتعال انگیز پیامات اور ویڈیوز کو پوسٹ کرنے کا الزام ہے۔
पुलिस ने कहा कि इन क़यामात और वीडियोज़ का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत को फ़रोग़ देना और अमन व अमान में रुकावट पैदा करना है। पुलिस ने कहा कि इन सोशल मीडिया के पोस्टों से अवाम में बेचैनी की कैफियत पाई जाती है और इससे समाज में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी मुतासिर हुई है। कशफ ने राजा सिंह के ख़िलाफ़ दफ्तर कमिश्नर पुलिस के रूबरू एहतजाज भी किया था। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ रियासत को अंधेरों में ढकेलने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत को एपी से 12,900 करोड़ रुपए की रकम वाजिबुल अदा है। इस मसले पर मरकज़ ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में बरक़ी बहरान है, लेकिन तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर बरक़ी कटौती नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि रियासत में 24 घंटे बरक़ी ज़रूरी मकासद के लिए फ़राहम की जा रही है। उन्होंने पूछा कि मरकज़ ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून पर क्यों अमल नहीं किया और इस सिलसिले में क्यों मदाखलत नहीं की। తెలంగాణ ప్రభుత్వ డిస్కామ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ డిస్కామ్లకి నెల రోజుల్లోనే 6,700 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు పూర్తిగా దురుద్దేశపూర్వకమైనవి. ఇవి ఏకపక్షమైన ఉత్తర్వులు. వాస్తవానికి తెలంగాణ డిస్కంలకి, తెలంగాణ పవర్ యూటిలిటీస్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పవర్ యూటిలిటీస్ నుంచి 12,940 కోట్ల రూపాయలు రావాల్సిందని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అధికారుల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ విషయంలో మీరు జోక్యం తీసుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాకు రావాల్సిన బకాయిలు ఇప్పించాలి అని చెప్పి గత 8 సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు ఇవ్వవలసిన విద్యుత్ విషయంలో కావచ్చు, తెలంగాణకు ఇవ్వాల్సిన విద్యుత్ బకాయిల విషయంలో కావచ్చు, తెలంగాణకు సంబంధించిన పీపీఎల్ విషయంలో కావచ్చు, ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తూ తెలంగాణకు నష్టం కలిగించే పద్ధతుల్లో వ్యవహరిస్తున్న విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి పలు సందర్భాల్లో తీసుకోవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఏ ఒక్క రోజు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై దృష్టి పెట్టలేదు, మాట్లాడలేదు, పట్టించుకోలేదు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ప్రత్యేకించి గత సంవత్సరాల కాలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం अनिल कुमार यादव जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस व इंचार्ज हल्के मुशीराबाद ने मुशीराबाद के आशुरखानों में पहुंचकर धट्टी पेश की। उन्होंने कवाड़ीगोड़ा आशुरखाना और मुशीराबाद आशुरखाने में पहुंचकर धट्टी नज़र की। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ कारपोरेटर भोलकपुर मोहम्मद वाजिद हुसैन, पी श्रीनिवास यादव और दूसरे मौजूद थे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 3 सितंबर को 2 बजे दिन प्रगति भवन में रियासती काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास के दौरान असम्बली के आने वाले सेशन की तवारीख पर मुतल्लिका उमूर को क़तइयत देने के अलावा दूसरे मसाइल पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किए जाने की तवक्को है। मिंबर मेहराब फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद और सिकंदराबाद के दीनी मदारिस के शोबे हिफ्ज़ के तलबा में हिफ्ज़ और तजवीद में मसाबिक़ा पैदा करने और हिफ्ज़ की पुख्तगी के लिए 25 सितंबर को रोज़ गार्डन में मसाबिक़ा हिफ्ज़ कुरान मजीद मुनक़िद किया जा रहा है। जुलाई के अवाखिर और अगस्त के अवाइल में हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम छोटे बड़े ऐसे मदारिस जहाँ शोबे हिफ्ज़ का इंतज़ाम है, दावतनामे, शराइत और फॉर्म्स की तकसीम अमल में आ चुकी है और 50 से ज़ायद दीनी मदारिस के तलबा इस मसाबिक़े की तैयारी कर रहे हैं। इस मसाबिक़े में 2 ग्रुप्स रखे गए हैं। पहला ग्रुप मुकम्मिल हिफ्ज़ कुरान मजीद का है और दूसरा ग्रुप 1 ता 20 पारा है। मिंबर मेहराब फाउंडेशन की जानिब से अव्वल, दुवम और सुवम आने वाले तलबा में इनामात देने का फ़ैसला किया गया है। पहले ग्रुप का इनाम अव्वल 25,000 रुपये, दुवम 20,000 रुपये और सुवम 15,000 रुपये है। इसके अलावा 10 तरगीबी इनामात भी दिए जाएंगे। दूसरे ग्रुप का इनाम अव्वल 20,000 रुपये है, दूसरा 15,000 रुपये है और तीसरा 10,000 रुपये है। मिंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम 25 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार रोज़ गार्डन
चंपापेट रोड में एक मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान मजीद मुनक़िद किया जा रहा है और जिसके लिए तमाम मदारिस को जो हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद से मुताल्लिक़ा हैं दावतनामे और शराइत और फॉर्म्स वग़ैरह दिए जा चुके हैं और 10 सितंबर से पहले तमाम मदारिस के वो तलबा जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं जो मुसाहिम हैं उनकी तफसीलात और फॉर्म्स और फ़ोटोज़ वग़ैरह दफ्तर मिंबर मेहराब फाउंडेशन मुत्तसिल मस्जिद अल-फलाह वाहिद नगर कदीम मलकपेट हैदराबाद तक पहुँचा दें। और जो मुसाबका हो रहा है इसका मकसद ये है कि तलबा में हिफ्ज़ की पुख्तगी और लहन के साथ कुरान मजीद के पढ़ने और तजवीद के साथ कुरान मजीद के पढ़ने का जज्बा और उसकी कैफियत पैदा करने के लिए मुकाबला रखा गया है और 60 से 70 मदारिस तक ये दावतनामे पहुँचाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि 150 तलबा इसमें शरीक होंगे और इसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं और 2 ग्रुप में पहला ग्रुप पूरे मुकम्मल कुरान मजीद का है और इस मुकम्मल कुरान मजीद में जो हिस्सा लेंगे उनके लिए इनाम अव्वल 25,000 और इनाम दुबम 20,000 और इनाम सोम 15,000 रुपये हैं और इसके अलावा 10 तरगीबी इनाम दिए जाएंगे और जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी 3 इनामात जो होंगे अव्वल दुबम सुवम। पहला इनाम दूसरे ग्रुप का 20,000, दूसरा इनाम 15,000, तीसरा इनाम 10,000 और इसके अलावा 10 तरगीबी इनामात रहेंगे और इसके अलावा जितने भी मुसाबक़े में शरीक होंगे उनके लिए 200 रुपये आमद व रफ्त का ख़र्च दिया जाएगा और 300 रुपये मालियती किताबें दी जाएंगी और जो भी इनामात लेंगे चाहे वह तरगीबी हो या इनाम अव्वल दुवम सुबम हो उन तमाम से मुताल्लिक़ा असातिज़ा के लिए सनद एज़ाज़ी और इन तमाम से मुताल्लिक़ा मदारिस के लिए सनद तौसीफ़ी भी दी जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। मैलारदीपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कल शब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात का अहाता करते हुए रात देर गए चबूतरों में बैठने वालों की काउंसलिंग की। रात देर गए तक भी दुकानात और तिजारती इदारों के खुले रखने की इत्तला पर यह मुहिम चलाई गई ताकि ऐसे ताजिरों के साथ साथ चबूतरों पर रात देर गए अपने औकात को ज़ाया करने वाले नौजवानों की काउंसलिंग की जा सके। पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम के तहत बाइक पेट्रोलिंग की। इस मुहिम का एक और मकसद इलाके में अमन और हिस्ट्री शीटर्स को उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों से रोकना भी है। पुलिस ने कहा कि अवामी मफाद में चलाई गई इस मुहिम का बेहतर रद्द अमल सामने आया है। साथ ही अवाम से दरख्वास्त की गई है कि रोडी शीटर्स की हलचल की इनको इत्तला दी जाए। पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपनी दुकानात और तिजारती इदारों को 11 बजे शब तक बंद कर दें। पुलिस ने नौजवानों को रात देर गए अपने चबूतरों पर बैठने, ग्रुप्स की शक्ल में सड़कों पर खुलेआम फिरने के खिलाफ इंतबाह देते हुए कहा कि इससे जराइम की वारदातें होने का अंदेशा है। गुड इवनिंग। आज मैलारदेवपल्ली PS लिमिट्स में हमारा इंस्पेक्टर साहब और टर्न स्टाफ पूरा लैंड स्टाफ मिलके ये चबूतरा में बैठने वालों की पूरा काउंसलिंग करने के वास्ते एरिया में पेट्रोलिंग करें और ये शॉप भी एस्टेब्लिशमेंट्स भी लेट आवर्स में ओपन रखे बोल के उनकी काउंसलिंग करने वास्ते हम लोग पूरा बाइक पेट्रोलिंग करें और ये अपना एरिया पूरा पीसफुल रहना, कुछ रौडी शीटरों का नहीं तो चोर लोगों का हलचल कुछ भी नहीं चलना बोल के हम पब्लिक की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ये मैलारदेवपल्ली पुलिस लिमिट्स में PS लिमिट्स में पब्लिक भी हमारा सपोर्ट करना, ये शॉप्स भी पूरा टाइम पे बंद करना और ये राउडी शीटरों का कुछ हलचल है तो हमारा इन्फॉर्मेशन देना, ऐसा पूरा मिलके पब्लिक के साथ मिलके हम एरिया पीसफुल रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी किसी को अरेस्ट करेगा नहीं, सिर्फ काउंसलिंग करके छोड़ अभी अरेस्ट किसको भी नहीं करे, पूरा बैठने वालों की, बाहर बैठने वालों की, एरिया में विदाउट काम फिरने वालों की हम काउंसलिंग करें। आज पुलिस की तरफ से टाइमिंग क्या है सर बंद करने की? एक्चुअली गवर्नमेंट का हिसाब से 11 o'clock अदर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड 12 o'clock होटल्स का है, मगर एरिया में थोड़ा तकलीफ कर रहा बोल के 11 o'clock तक पूरा बंद करना बोल के हम पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर यूथ के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? यूथ लोग पूरा ये विदाउट काम में बाहर नहीं बैठना और ग्रुप वजह से ग्रुप मिलके गैदरिंग होके एरिया में फिर रहा वैसा नहीं करना और ये ड्रग्स बोले तो टैबलेट्स और गांजा इसको इंफॉर्मेशन रहे तो बोलना और ये नहीं पीना, पब्लिक को उसको एडिक्ट नहीं होना बोल के हम काउंसलिंग कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। माधापुर की DCP शिल्पा वल्ली ने वाजे किया है कि गणेश के मंडपों के क़याम के लिए
इन मंडपों के जिम्मेदारों को लाजमी तौर पर पुलिस की इजाज़त हासिल करनी होगी। उन्होंने मंडपों के क़याम, सिक्योरिटी के मसाइल पर कुकटपल्ली में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इससे जायज़ा इजलास में मुंतज़मीन को उन्होंने मुख्तलिफ मशवरे दिए। వీరందరికీ కూడా మనం ఆర్గనైజర్స్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రైట్ ఫ్రమ్ విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్తున్న దగ్గర నుంచి దాన్ని ఎక్కడ పెడుతున్నామో డిస్ప్యూటెడ్ ల్యాండ్లో పెట్టుకోకుండా, అట్లనే ఏదైతే స్ట్రక్చర్ పెడుతున్నామో దాని సేఫ్టీ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ మైండ్లో ఉంచుకొని దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలని, అట్లనే పండలు పెట్టిన తర్వాత కూడా ఆర్గనైజర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని 24/7 అవైలబుల్ ఉండి రాత్రిపూట కూడా వాలంటీర్స్ ఉండాలని, ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా మనము క్లస్టర్ వైజ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని అలాట్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళకి వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి సో దట్ వీ కెన్ రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ అండ్ రిజాల్వ్ ద ఇష్యూస్. పండల్స్లో తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఫైర్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ అవ్వచ్చు, క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, వీటన్నిటి గురించి కూడా వారికి వివరించడం జరిగింది. సిమిలర్లీ నిమజ్జనం రోజు ఏవైతే వెహికల్స్ హైర్ చేస్తారో వాటి విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వాళ్ళ పండల నుంచి కూడాను నిమజ్జనం ట్యాంక్ వరకు కూడాను ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని కూడా వారందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా వారి సూచనలు సలహాలు చెప్పడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా పెడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఎంతో సహకరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. 10 తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అండి రాత్రిపూట. వి హావ్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్. అట్లనే డీజేస్ కూడా కోర్ట్ ఆర్డర్ ప్రకారము నిషేధించడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది. పండల దగ్గర అవ్వచ్చు, అట్లనే నిమజ్జనం ప్రొసెషన్లో అయినా అవ్వచ్చు. మన దగ్గర ట్యాంక్ బండ్ తర్వాత సరూర్ నగర్ తర్వాత ఐడియల్ లేక్లోనే చాలా పెద్దగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫోర్సెస్ వస్తాయి. मनीगुंडा में एक एटीएम सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया। कल शब मेन रोड पर एक्सिस बैंक के इस एटीएम में आग लग गई। एटीएम सेंटर में आग को देखने के बाद मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े के सिलसिले में मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस वाक़े में एटीएम मशीन जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गए और इसमें रखी रकम भी आग की नज़र हो गई। इस बात का हनूज पता नहीं चल पाया है कि इसमें कितनी रकम थी। पुलिस आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। शहर के नवाही इलाके कोकापेट में एलपीजी सिलेंडर्स की रीफिलिंग के दौरान आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए। ज़राए ने कहा कि झुलसे हुए अफराद की हनूज शिनाख्त नहीं हुई है। ये अफराद छोटे गैस सिलेंडर्स में गैर क़ानूनी तौर पर गैस की रिफिलिंग का काम कर रहे थे कि ये वाक़या पेश आया। राजन्ना सिरसिला ज़िले के वेमुलवाड़ा टाउन में मिड मानेर डैम के मुतासरीन ने बड़े पैमाने पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कशीदगी फैल गई। तवील मुद्दती मुतालबात की तकमील के लिए रियासती हुकूमत पर जोर देते हुए इस डैम के सबब अपनी अराजियात से महरूम अफराद ने वेमुलवाड़ा में शदीद एहतजाज किया। जेएसी की जानिब से इस महाधरने का अहतमाम किया गया था, जिसमें बेशतर मवाज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ताहम रास्ते में पुलिस ने नंदी कमान इलाके में उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिससे कशीदगी फैल गई। पुलिस की कार्रवाई पर बरहम ये अफराद एहतजाज करने लगे। पुलिस के साथ इनकी बहस व तकरार हो गई, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बाज़ मुजाहिरीन पुलिस की गाड़ियों के रास्ते में भी आकर बैठ गए। अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थाम कर इन अफराद ने नारेबाजी शुरू कर दी और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने उनसे हासिल करदा अराजी का मुकम्मल मुआवजा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात उन्हें फराहम नहीं किए गए हैं, जिसका वादा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किया था। पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।